Okay, class. So in my last lecture, I have told about the what is the page, what is the paging, and how it is comes the logical address and physical address, how it is stored in the logical address and how it is stored in a physical address. It means if any process starts from the CPU, then that process is in a logical address, stored in a logical address. Then we have adding a one concept, then that process is converted into physical address. So same things I have studied in my last lectures. Okay, so in this lecture we will know what is the address translation. So here you will learn two things: what is the logical address and physical address. This is the main thing. So see what is written here. Logical address. Logical address means page number plus offset. What is the logical address? Logical address means page number plus offset. Okay, so before this we will learn this one. पेज एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस. जो भी पेज का एड्रेस होगा वो हमारा क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस होगा. और लॉजिकल एड्रेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पेज नंबर प्लस ऑफसेट. सो वन थिंग विल बी रिमेंबर, व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस इक्वल्स टू पेज नंबर प्लस ऑफसेट. पेज नंबर प्लस ऑफसेट इज लॉजिकल एड्रेस. ओके, सो नाउ वी विल कम ऑन दिस वन. Frame address is physical address. See, page address is logical, page address is logical, and frame address is physical. Physical address equals to frame number plus offset. Offset तो same ही रहेगा. ठीक है, तो page number, if we are coming on the logical address, then we will introduce a page number. If we are coming on the physical address, then we will introduce the frame number. Okay, remember two things. If page number, page address, then page number. If frame address, then frame number. Simple. Frame is a physical and page is logical. Because paging concept is non-contiguous allocation. It means virtual. Okay, so now we will see one example. Through this example you will easily understand what I want to say, how it stores everything, and what is the concept of the paging. Address translation. Here I have described about the how the address translation works. Okay, so now see, suppose we have one CPU send a message to send a message. उसने अपना मैसेज सेंड किया. देन आफ्टर दैट मैसेज इज स्टोर्ड इनटू वन टेबल, एंड दैट टेबल इज आल्सो सेंडिंग दैट मैसेज टू द ऑफसेट. ओके, एंड दैट मैसेज इज स्टोर्ड इनटू main memory. So how it is works? See how it will be work. So simple. CPU sending a message. So you know, in my first lecture I have told you, whenever CPU is sending anything, so that thing is in logical address. It means logical. So CPU is sending a logical address. Okay, that will be stored in page number प्लस ऑफसेट. सो लिसन, सी आई हैव टोल्ड यू लॉजिकल एड्रेस. जैसे मैंने देखिए, फिर से एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, बिकॉज यही थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है. इसको बार बार देखिए, एकदम कंफ्यूज, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली जरूरत नहीं है इसमें लेने की. सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा? सीपीयू सेंडिंग अ लॉजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस, तो लॉजिकल एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? ये देखिए, लॉजिकल एड्रेस इक्वल्स टू पेज नंबर प्लस ऑफसेट. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर. what लॉजिकल एड्रेस स्टोर्ड इन पेज नंबर. ये होता है लॉजिकल एड्रेस. यही होता ही है. पेज नंबर प्लस ऑफसेट इक्वल्स टू लॉजिकल एड्रेस. दिस इज लॉजिकल एड्रेस. इट विल बी स्टोर्ड इन वन टेबल. दैट टेबल इज पेज मैप टेबल. की कैसे क्या हो रहा है मैं इससे पहले वाले में बता चुका हूँ. कैसे स्टोर हो रहा है, सारी टेक्निक कैसी है, वो सारी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके थे. कोई भी कंफ्यूजन है, इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेज नंबर प्लस फ्रेम था. ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर और ऑफसेट से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अब डिवाइड हमको क्या, देखिए, ये लॉजिकल एड्रेस को इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर फिजिकल एड्रेस में. क्यों? क्योंकि जो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, मेन मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस नहीं होता है. मेन मेमोरी में हमेशा फिजिकल एड्रेस ही स्टोर होता है. तो क्या हुआ? सीपीयू से हमारा जो है एक प्रोसेस चला, विच प्रोसेस इन अ logical form. Okay, that will be stored is here and come to the page map table. And page map table divided by the two parts. One is page number and frame number. Okay, now it will be sent to frames. पेज में आ गया. यहाँ देखिए पेज में आया. अब इसको हम
फ्रेम्स में वो कर देंगे, क्योंकि पेज इक्वल टू फ्रेम्स इससे पहले वाले लेक्चर में एकदम इजिली मैंने आपको एकदम क्लियर किया था कि पेज और फ्रेम का साइज सेम होता है, बताया था। तो ये पेज है, अभी कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रेम में। अभी स्टोर हो जाएगा किसमें, फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट, ठीक है। ये इसमें स्टोर हो जाएगा, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, it will be stored in a secondary memory. Okay, it will be stored in a secondary memory. कैसे, देखिए ये हुआ, अब ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में हमारा स्टोर हो गया, ये देखिए फ्रेम्स के फॉर्म में आ गया, स्टोर हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से ये फिजिकल एड्रेस से स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ आते आते भी किस में हो गया, फिजिकल, सॉरी हाँ फिजिकल एड्रेस में। ये देखिए मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, स्टोर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए इन, स्टोर्ड इन फिजिकल एड्रेस। ये यहाँ पे किस में हो गया, ये फिजिकल फॉर्म में हमारा जो वो था डेटा वो हमारा स्टोर हो गया। सो दिस इज हैपन। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट व्हाट इज दिस। यहाँ पे क्या लिखा, हियर वी हैव सीन लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट इनटू फिजिकल एड्रेस, वही जो मैं भी आपको बता रहा था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लॉजिकल था, डिलीट कर दिया जाए थोड़ा, हाँ ये देखिए ये हमारा यहाँ से लॉजिकल था, लॉजिकल यहाँ पे आके किस में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल में, और ये स्टोर किस में हो गया, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा स्टोर हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्टोर कैसे हो रहा है, हट कैसे रहा है, सारी चीजें इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए सपोज वी हैव वन मेन मेमोरी, दिस इज अवर मेन मेमोरी, ओके, दिस इज अवर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हैज फ्रेम्स कितने, 0 से लेकर के 5 फ्रेम तक है। सबसे पहले हम इसमें चाहते क्या है कि लोड ए को स्टोर करना चाहते हैं। ए कितना है, ए 3 है, एक ए नॉट है, एक A1 है और A2 है, ठीक है। ये हमको स्टोर करना है। तो आया हमारा सीधे यहाँ 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 ऊपर से अपना स्टोर हो गया, ये ए नॉट, ये लोड ए था, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द लोड बी, दिस इज लोड बी। अब हमारा लोड बी स्टार्ट होगा, ठीक है। लोड ए क्योंकि 3 स्पेस लिए हुए था, तो यहाँ पे बी 1 आ गया, 2 3, यहाँ पे हमें B1 B0 B1 B2 दो चीजें हमको यहाँ पे वो करनी थी, स्टोर करनी थी, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर, वी हैव वन पे लोड, लोड क्या है, सी भी हमारा कितना, C0 C1 C2, तो वो भी अगले यहाँ पे आकर जो है, ये देखिए ये हमारा क्या था, सी था, ठीक है। ये हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ठीक है। ये सी स्टोर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वी वांट टू स्वैप आउट द बी। अब हमको क्या करना है, बी को स्वैप आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे बी को स्वैप आउट करने के लिए, बी को हम स्वैप आउट करेंगे। सो वी विल कम ऑन द नेक्स्ट, सी हियर, वी विल कम ऑन हियर। यहां से हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था अभी तक, यहाँ पे B0 था, यहाँ पे हमारा B1 था, यहाँ पे हमारा B2 था, स्टोर था इन तीनों में। ये यहाँ से देखिए हट गया, स्वैप आउट कर दिए, देखिए स्वैप आउट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया स्वैप आउट B टू द डिस्क, ये देखिए स्वैप आउट टू द डिस्क, देन द फिक्स्ड मेमोरी कैन बी यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। अब क्या है, जो ये मेमोरी जितनी बच गई है, कितनी, 3 स्पेस, B0 B1 B2 3 स्पेस बचा है, तो अब 3 स्पेस कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ओके, सो अब देखिए हमारा हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया हमने, डी हमारे पास देखिए, अब एक हमारा अगला लोड क्या है, डी हमारे पास कितना है, एक है D0 है, एक हमारा D1 है, एक D2 है और D3 है। हमारे पास 4 है, हमारे पास डी के 4 फॉर्म है। अब चूंकि यहाँ पे बी खाली हुआ था 3 स्पेस, तो 3 स्पेस यहाँ इंस्टॉल हो गया, हमारा स्टोर हो गया, इंस्टॉल नहीं स्टोर हो गया, D0 D1 D2, ठीक है। और सी के नीचे यहाँ पे भी हमारा बैक ब्लैंक चल रहा था अभी तक, ऊपर देखेंगे आप इस वाले में, तो ठीक है। तो एक आके सी यहाँ स्टोर हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे इन सब का कहने का, कि जहां भी जगह खाली होगी वो वहीं पे अगला प्रोसेस स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई फिक्स्ड होगा, ठीक है। सो देयर इज अ चांस इफ यू डिवाइड मेन मेमोरी इनटू फ्रेम्स, ये हमारी मेन मेमोरी थी, हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया था फ्रेम्स। सो व्हेनेवर द प्रोसेस इज नॉट फिटेड देन स्प्लिट द प्रोसेस एंड स्टोर्ड इन अनदर फॉर्म। देखिए हमारे पास एक प्रोसेस था D1 D0 D1 D2 D3, एक प्रोसेस डी था, वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना फ्री था, तो मतलब हमें मेमोरी वेस्ट नहीं करनी है, सारी जो है वो अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, पेजिंग। कोई भी हमारा डेटा था उसको हमने क्या किया, जो है छोटे छोटे
पेजेस में डिवाइड कर दिया. सो दैट कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पेजिंग. If anyone has any confusion or anything else, then comment me. I will solve your all the problems regarding this one. Okay. Thank you. If you like, then please subscribe.